Good morning, all of you. In this part of alkyl halides and the aryl halides, we will discuss about the different reactions of the aryl halides. The different reactions of aryl halides includes the electrophilic substitution reactions. As we know that any of the compound which has the benzene ring will generally shows the electrophilic substitution reaction. Why they show the electrophilic substitution reaction? Because we know that in the benzene ring there is very high pi electron density. Due to the presence of that negatively charged high pi electron density, it will attract the electrophile towards itself, means the electrophile will attack on it. But if there is something group which is present on the benzene ring, then the nature of the reaction depends upon the nature of the group. Because here in the chlorobenzene the group attaches Cl, और जो ये Cl यहाँ पे attach है, the Cl is a group 17 element like fluorine, chlorine, bromine, iodine. These all are the group 17 elements. In the 17, in the last there is 7, means they have the 7 electron in their valence shell. आप configuration देखो, हम आपके सामने लिख के दिखाते हैं फ्लोरीन की 1s2 2s2 2p5, means there are 7 electron in their valence shell. Similarly chlorine, but in case of fluorine there is no vacant d orbital. फ्लोरीन के केस में क्या है कि वहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि सेकंड शेल के अंदर सिर्फ 2 ही सब शेल होती हैं, एस और पी। तो जिसकी वजह से जो आपका फ्लोरीन है, अब ध्यान से देखें, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स, हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स देखो शो किए यहाँ पे, मींस द फ्लोरीन कैन फॉर्म 1 कोवलेंट बॉन्ड and the remaining will be the lone pair electrons. Means there are 3 lone pair electrons. Same is the case with the other elements of group 17. Just increase the number of the valence shell. In case of 17, the valence shell in case of fluorine is 2s2 2p5. So dash dash करके आप ऐसे लिख सकते हैं 3s2 3p5, but there is also the 3d0. But the total number of electron in the valence shell will remain same, that is the 7. Similarly, in case of bromine, iodine, means they have 3 lone pair electron. After formation of 1 bond, देखो क्लोरीन ने यहाँ पे 1 bond बनाया है, और 1 bond बनाने के बाद क्लोरीन के पास बोलो क्या है, there are 3 lone pair electrons. So due to the presence of the 3 lone pair electron, it will show the plus R effect. Plus R effect group are those group which increases the electron density towards the ortho and the para position. Towards the ortho and the para position, they will increase the electron density towards the ortho and the para position, and thus they directs the incoming electrophile towards the ortho or the para position. So we got the two product in each case. In every electrophilic reaction we got the two product, ortho product and the para product. तो जो अभी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे एराइल हैलाइड्स की, जो हमने पहले जैसे बेंजीन के केस में देखी थी, वो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वो जितनी भी रिएक्शंस थी सेम रिएक्शंस यहाँ पर भी होंगी। लेकिन जैसे बेंजीन के केस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता था, अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो बेंजीन के ऊपर सिर्फ NO2 लगता था, क्योंकि बेंजीन एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और इसीलिए उसके ऊपर NO2 किसी भी एक पोजीशन के ऊपर लग सकता था, मींस नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट बन जाता था। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ द आपका जो Cl है, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि इसका प्लस आर इफेक्ट है, ये डायरेक्ट करेगा, ये डायरेक्शन देगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कि भाई आप कहाँ पे जाके अटैक करें। इलेक्ट्रोफाइल अटैक वहां पे करेगा जहां पे उसको मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देगी। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। इफ द नेचर ऑफ द ग्रुप इज प्लस आर, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी by their electron donating nature towards the ortho and the para position. So it directs the incoming electrophile towards the ortho or the para position. So the electrophile will attack either at ortho position or at para position. So these plus R effect groups are also called as the ortho para directing groups. तो ये सारे ग्रुप आपके कैसे होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो Cl भी यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जो आपका, देखो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। अगर हम नाइट्रेशन रिएक्शन करें तो रिएक्शन अब कहाँ पे चलेगी, तो नाइट्रेशन रिएक्शन में हम मैकेनिज्म पहले ही
पढ़ चुके होते हैं इनका कि जब HNO3 और H2SO4 आपस में रिएक्ट करते हैं, they will generate an electrophile that is the nitronium ion, NO2 positive, that called the nitronium ion. It is a very strong electrophile, so it will attack at ortho or at para position. Means it gives the two product. If attack on the ortho position, it gives the ortho product, means orthochloronitrobenzene. If NO2 positive ion attack at the para position, it will give the para chloronitrobenzene. means जो आपको क्लोरोबेंजीन है, इसमें जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन करवाते हैं तो NO2 ग्रुप जो है वो कहाँ पे लगेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन. अगर पैरा पे लग गया तो पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन. तो दैट इज द नाइट्रेशन रिएक्शन, दैट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Next one is the sulfonation reaction. In case of sulfonation, the electrophile is SO3, which will attack at the same ortho or the para position, which will give the sulfonic acid. Means orthochlorobenzene sulfonic acid. If the SO3 attack at ortho position, and it will give the parachlorobenzene sulfonic acid. If it attack on the para position, so that is the sulfonation reaction. Next one is the halogenation reaction. It will give the halonium ion. Like in case when we have the halogen is Cl2, Cl2 oblique AlCl3, it will give the Cl positive ion, which act as the electrophile. So Cl positive ion similarly will attack either at ortho position, so it will give the ortho dichlorobenzene. If it will attack at para position, then it will give para dichlorobenzene. So that is the halogenation reaction. Next one is the Friedel-Crafts alkylation reaction. If we take the alkyl group as the CS3, then it will generate the CS3 positive ion, alkylium ion, which will also attack at the same ortho and the para position. If it will attack at the ortho position, then it will give the orthochlorotoluene. If it attack at the para position, then it will give the parachlorotoluene. Because the if the CS3 group is present on the benzene ring, then it is called the toluene. तब आप उसे toluene कहते हैं. In case of the FC acylation reaction, and we put the value of R as CS3, means CS3COCl acetyl chloride आपने लिया, which will generate as acylium ion as an electrophile. Then it will attack similarly at the ortho or the para position. Orthochloroacetophenone will be the product if the acylium ion attack at the ortho position, and the parachloroacetophenone product will be formed if the acylium ion attack at the para position. तो मीन्स आपने हर केस में देखा एराइल हैलाइड्स भी वही 5 रिएक्शन शो कर रहा है जो कि कौन शो करता था, आपके सिंपल बेंजीन. लेकिन सिंपल बेंजीन के केस में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एफसी एल्काइलेशन, एफसी एसाइलेशन, हर केस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता था. लेकिन यहाँ पे हर टाइम आपके 2 ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे सल्फोनेशन हो, चाहे आपकी हेलोजिनेशन हो, एफसी एल्काइलेशन, एफसी एसाइलेशन. ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो ग्रुप है आपका Cl, वो आपका एक प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, और प्लस आर इफेक्ट नेचर की वजह से वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोडेंसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज. तो इसलिए ये आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे. विद सम आपकी एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि आप मीडियम बदल दे, पोलर, नॉन पोलर कुछ होंगे आपके ग्रुप आगे. जैसे फिनोल के केस में अगर आपका क्लोरोबेंजीन की जगह फिनोल होता या एनिलीन होता, then we got something exceptional products, but here we got the 2 product in each of the case. यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा नाइट्रेशन में, तो आप जवाब देंगे कि इन केस ऑफ द नाइट्रेशन रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल विल बी द NO2 पॉजिटिव आयन. In case of the sulfonation reaction, the electrophile will be the SO3. In case of the halogenation reaction, the electrophile is X positive. If we take halogen as the Cl2, then the electrophile will be the Cl positive. In case of FC acylation, the electrophile will be the R positive. In case of the FC acylation, the electrophile will be the RCO positive, and the positive charge will be on the carbon atom.
तो इस तरह से आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। और साथ के साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे, आउट ऑफ दी 5 reaction, the 3 reaction, that is the nitrate, in case of nitration, sulfonation and halogenation, the electrophiles come in the category of the strong electrophile, while the R positive and the RCO positive, which जो दो रिएक्शन आपकी FC alkylation और FC acylation, they come in the category of the weak electrophile। यानी ये बात भी आपको ध्यान रखनी क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे आप कोई और टॉपिक पढ़े तो उस वक्त इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं। मीन्स आप क्या ध्यान रखेंगे कि NO2 positive ion, SO3 and the Cl positive, they come in the category of the strong electrophile, while the R positive and RCO positive, these they come in the category of the weak electrophile। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके एराइल हैलाइड के केस में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कि क्लोरोबेंजीन आपके यहाँ पे दे दिया और उसके बाद आपका क्या बन गया यहाँ पे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब एक चीज हम आपसे यहाँ पे पूछ लेते हैं कि मान लीजिए जो फर्स्ट केस है हमारा, हमने ये नाइट्रेशन की और हमारे पास एक ही रिएक्टेंट होता, जैसे क्लोरोबेंजीन में हमने नाइट्रेशन की, दो प्रोडक्ट हमारे बने, एक ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, दूसरा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। देखो दो प्रोडक्ट आपके बन गए। हमने क्या किया, इन दो प्रोडक्ट को सेपरेट आउट कर लिया, दोनों प्रोडक्ट्स को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, अलग अलग कंटेनर किया था। बाय द प्यूरिफिकेशन टेक्निक जो भी हमने लगाई, हमने दोनों को सेपरेट आउट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है, अगर हम 1 मोल और प्रोड्यूस करवा दें नाइट्रोनियम आयन, ध्यान से देखना, और अगर हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन करवा दें फर्दर, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अगर ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन की हम नाइट्रेशन कर दें तो ये जो NO2 पॉजिटिव आयन है अब कहाँ पे अटैक करेगा, तो अटैक अभी जैसे हमने बताया ये तो वहां पे करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखती हो। जैसे अब हमारे पास पैरा होता तो जो Cl है बोलो इसका कैसा इफेक्ट है यहाँ पे, ये देखो प्लस आर इफेक्ट, और NO2 का बोलो कैसा है, ये माइनस आर इफेक्ट। तो अब आप ये बताएंगे कि प्रोडक्ट कहाँ पे लगे बनेगा आपका, NO2 पॉजिटिव आयन कहाँ पे अटैक करेगा। तो आप ये जानते हैं कि दोनों इफेक्ट N- I इफेक्ट से तो क्या होगा, ये आपकी जो ऑर्थो पोजीशन है NO2 ग्रुप यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोलो क्या कर देगा, यहाँ पे डिक्रीज, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि प्लस आर इफेक्ट से Cl ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोलो क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अटैक कहाँ पे करेगा, एट द ऑर्थो पोजीशन। पैरा पे अटैक हो ही नहीं सकता बिकॉज इट ऑलरेडी हैव द NO2 ग्रुप। तो Cl जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो डोमिनेटिंग ग्रुप है, आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, Cl और द NO2। तो Cl जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन पैरा के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लग नहीं सकता क्योंकि वहां पे पहले से ही NO2 है, तो इसलिए कहाँ पे होगा अटैक, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे, वो भी विद रिस्पेक्ट टू आपके Cl। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा पैरा के केस में, देखो इस टाइप से Cl, और यहाँ पे बोल, अब यहाँ पे बताओ क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप, और यहाँ पे पैरा पे NO2 देखो पहले से ही था। तो इस टाइप से अगर हम फर्दर नाइट्रेशन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करें और बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो उस वक्त जैसे अभी हमने आपको सिखाया कि आप ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, वो नेचर ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है इसमें दो टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं, वन इज द Cl दैट इज द प्लस आर इफेक्ट ग्रुप, अदर वन इज द NO2 दैट इज द माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। तो हमें हमें हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्लस आर इफेक्ट के बेसिस पे बनेगा, क्योंकि अटैक किसको करना है, इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल क्या देखेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, तो प्लस आर इफेक्ट ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज की, ऑर्थो पैरा पे। तो ऑर्थो के ऊपर ही अटैक होगा, पैरा पे अटैक हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे पहले से NO2 लगा हुआ था। तो इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम देखते हैं ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन में नाइट्रेशन कर दे तो क्या होगा। तो इसी टाइप से आप बड़े ध्यान से देखें कि आपकी जो NO2 ग्रुप है जो कि एक माइनस आर इफेक्ट ग्रुप है, पहले तो आप ऐसा ही जरूर लिख लें एग्जाम में भी, और यहाँ पे आप प्लस आर इफेक्ट लिख लें।
तो प्रोडक्ट किसके बेसिस पे बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आपके प्लस आर इफेक्ट के बेसिस पे। चलो देखते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज की। तो प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज बोलो कहाँ पे की? या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो, तो राइट वाली जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे तो पहले से NO2 लगा हुआ है, या पैरा पोजीशन के ऊपर देखो, अपने पैरा के ऊपर देखो माइनस चार्ज लगा के रिप्रेजेंट कर दिया है ऐसे, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो माइनस आर इफेक्ट वाला NO2 ग्रुप है उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से डिक्रीज की है? उसने डिक्रीज की है ऑर्थो। तो NO2 जो ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? जो NO2 ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन सी? उसके साथ वाली पोजीशन देखो, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और कौन सी पैरा पोजीशन कौन सी इसके रिस्पेक्ट में? जो इसके बिल्कुल ट्रांस पोजीशन है, देखो यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो अब कहाँ पे अटैक हो सकता है? जो आपका Cl जो ग्रुप है वो कहाँ पे अटैक करे? तो जहां पे आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वहां पे अटैक करे। तो अटैक वो लोग कहाँ पे करेगा? आपके नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। हम पहले ही आपको बता चुके हैं जो पैरा प्रोडक्ट है वो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो Cl के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन कौन सी है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की थी Cl ने? देखिए बिल्कुल लास्ट में। तो इसलिए जो प्रोडक्ट बनने वाला है अब यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा, हमें मेजर प्रोडक्ट ही लिखना होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए माइनर तो ही हम माइनर का जिक्र करेंगे। यहाँ पे देखो ये NO2, और उसके बाद वो लोग कहाँ पे लगेगा? इस पैरा पोजीशन के ऊपर। देखो ये NO2, ये नए वाला NO2 है जो अभी हमने अटैच किया है पैरा पोजीशन के ऊपर, क्योंकि जो प्लस आर इफेक्ट वाला Cl ग्रुप था उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज की? आपकी पैरा पोजीशन के ऊपर और ऑर्थो के ऊपर। और जो लो टेम्परेचर के ऊपर आपका मेजर प्रोडक्ट कौन होता है? पैरा वाला। और हाई टेम्परेचर कर दें तो ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपको ये प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट के बेसिस के ऊपर रिएक्शन को करना आना चाहिए। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और रिएक्शन एराइल हैलाइड्स की। मान लीजिए आपके पास क्लोरोबेंजीन है, हम उसमें डाल दें एक्वस NaOH। तो जैसे अभी हमने सीखा था कि जनरली जो आपके एराइल हैलाइड है, क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग है, तो दे विल जनरली शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, क्योंकि हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन करवाना चाहें, देखो Na पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव होगा, तो जब ये अटैक करने के लिए जाएगा, देखो यहाँ पे, तो देयर आर द टू रीजन ड्यू टू विच there is very low possibility, there is very less possibility of attack of the OH negative ion, because OH negative ion is a nucleophile, it is not an electrophile. और तो फिर जो बेंजीन है, बेंजीन के पास क्या है? बेंजीन हैज द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन हैज हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, सो इट विल रिपेल द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो बेंजीन रिंग है जिसके पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट विल रिपेल द OH नेगेटिव, क्योंकि वो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है, इसलिए अटैक इजीली नहीं होगा। दूसरा, क्लोरोबेंजीन के केस में Cl के ऊपर क्योंकि लोन पेयर है, so due to the involvement of this lone pair electron in the resonance there is the double bond character। कार्बन, बेंजीन वाले कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसीलिए भी ये रिएक्शन इजीली नहीं होगी। क्योंकि अगर कार्बन हेलोजन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता तो उसको ब्रेक करना इजी है एज कंपेयर टू ब्रेक द डबल बॉन्ड। सो दीज आर द टू फैक्टर ड्यू टू विच that particular nucleophilic substitution reaction will not take place easily. So that particular reaction requires very high temperature, very high pressure, as shown by the scientist Doves. So the reaction is the Doves reaction. तो ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा OH नेगेटिव आयन का, कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करे यहाँ पे और ये रिएक्शन हो जाए। देखो OH नेगेटिव अब अटैक करेगा यहाँ पे और ये बॉन्ड का क्लीवेज हो जाए। देखो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे चला जाए OH के नेगेटिव से। वैसे जो OH नेगेटिव आयन है इट इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और Cl जो है वो एक वीकर है, इसलिए ये इसको रिप्लेस कर सकता है। लेकिन क्यों रिप्लेस नहीं करेगा इजीली, वो हमने आपको बता दिया, दो फैक्टर थे। लेकिन अभी इस रिएक्शन को करवाने के लिए OH नेगेटिव आयन को हम कंपेल करेंगे कि आप वहां पे अटैक करें बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और इंक्रीजिंग द प्रेशर। सो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर दीज कंडीशन। ये पाया गया कि जो रिएक्शन है ये 623 केल्विन टेम्परेचर करेंगे और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी।
So that is the Dove's reaction and the product formed here is the phenol. तो क्लोरोबेंजीन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके फिनोल के अंदर. So this is the nucleophilic substitution reaction. नेक्स्ट, सिमिलरली अगर हम रिएक्शन करें CuCN के साथ, CN के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज होता है, Cu के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 प्लस cuprous cyanide है. That reaction occurs at a temperature of 475 Kelvin. In case of the pyridine, which act as the catalyst or the base, we got the benzonitrile. Cl को replace कौन करेगा यहाँ पे, Cn. So the compound thus formed is the benzonitrile. Next, अगर हम ले लें अमोनिया के साथ reaction in the presence of the catalyst Cu2, it requires a temperature of 475 Kelvin with a pressure of 60 atmosphere. We got aniline. तो क्या बन जाएगा बोलो यहाँ पे, aniline, क्योंकि अमोनिया का जो H है वो Cl को ले जाएगा, HCl, और NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा, तो आपका क्या बन गया प्रोडक्ट, आपका aniline. तो ये जो भी रिएक्शन है जिसमें हम Cl को रिप्लेस कर रहे हैं बाय डिफरेंट ग्रुप्स, बाय OH Dove's रिएक्शन, बाय Cn अगर हम CuCN डाल दें, और अगर हम अमोनिया डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो NH2 ग्रुप के द्वारा. तो दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट, जो आपका क्लोरोबेंजीन है, ये जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, इट कैन शो ए रिएक्शन दैट इज द one part is the chlorobenzene. If we take another part as an alkyl halide and we add sodium oblique dry ether, the reaction is called the Fittig reaction. जो Na है उसके 2 moles यूज होंगे यहाँ पे. तो Na किसको लेके जाएगा, एक Cl को यहाँ से, और सिमिलरली Cl ऑफ द बेंजीन रिंग. तो अगर हम हीट करते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी क्या कहलाएगी, क्योंकि 1 आपका वुड्स पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट तो बोलो कौन से वाला है, वुड्स वाला पार्ट है, बोलो कौन, एल्काइल हैलाइड. अदर फिटिक वाला पार्ट है. सो रिएक्शन इज कॉल्ड द वुड्स फिटिक रिएक्शन. रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी यहाँ पे, दैट इज द वुड्स फिटिक रिएक्शन. तो रिएक्शन आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगी. तो आपके बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लग जाएगा, CH3 ग्रुप लग जाएगा. तो टोल्विन आपका बन गया. तो क्लोरोबेंजीन ने कौन सी रिएक्शन भी शो की, वुड्स फिटिक रिएक्शन. वी गॉट द टोल्विन एज द फाइनल प्रोडक्ट. सिमिलरली अगर हम 2 मोल्स ही क्लोरोबेंजीन के ले लें, वही सेम उसी टाइप से सोडियम ट्राइथर की प्रेजेंस में रिएक्शन इज कॉल्ड द फिटिक रिएक्शन. Na के उसी टाइप से देखो 2 मोल्स यूज होते हैं. Na क्या करेगा, NaCl, सेकेंड वन भी यहाँ से भी NaCl. तो 2 जो बेंजीन रिंग है वो आपस में कंबाइन करेंगे, मींस डाइफिनाइल हमें मिलेगा, बाइफिनाइल हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे. तो ये आपकी क्लोरोबेंजीन की नेक्स्ट रिएक्शन हो गई. अगर हम बेंजीन के ऊपर Cl की बजाय I लगा देते तो उल्मान रिएक्शन चलती बिल्कुल इसी टाइप से, जिसमें बाइफिनाइल ही बनता है. वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बता चुके हैं. अगर हम आयोडोबेंजीन के 2 मोल ले लेते, सिर्फ यहाँ पे हमें कैटलिस्ट अलग लेना पड़ता. जैसे हमने सोडियम लिया है आपका रिएजेंट, तो हम रिएजेंट वहां पे क्या लेते, कॉपर पाउडर इन द कॉपर ट्यूब. तो कॉपर ट्यूब के अंदर हम रिएक्शन करते, कॉपर पाउडर हम डालते, और फिर आपकी रिएक्शन होती है, सेम प्रोडक्ट मिल जाता बाइफिनाइल. तो क्या मिल जाता हमें, बाइफिनाइल. लेकिन रिएक्शन कहलाती वो उल्मान रिएक्शन. तो रिएक्शन आपकी क्या बन जाती, उल्मान रिएक्शन. देखो हम यहाँ पे साइड में लिख के आपको दोबारा से बता भी दें कि मान लीजिए हमारे पास ये आयोडोबेंजीन होता, इसके 2 मोल ही आप यूज करते उसी टाइप से, और कॉपर पाउडर कॉपर ट्यूब के अंदर हम इस रिएक्शन को करते, हिट करते, उसमें कॉपर पाउडर होता. तो Cu किसको लेके जाएगा, यहाँ से I को. 2 बेंजीन रिंग आपस में उसी टाइप से आपके कंबाइन कर जाएंगे. देखो और प्रोडक्ट आपका क्या बना, देखो उसी टाइप से बाइफिनाइल. रिएक्शन इज कॉल्ड एज द उल्मान रिएक्शन. रिएक्शन आपकी क्या कहलाई, रिएक्शन ये आपकी कहलाती है उल्मान रिएक्शन. तो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ द एराइल हैलाइड्स. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं DDT का बनना. जो DDT है वो कैसा कंपाउंड होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, हम इसकी सिंथेसिस के बाद आपसे पूछेंगे. तो ये बनता कैसे है, हमारे पास हमें यूज करने पड़ते हैं 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन. देखो ये हमने 2 मोल्स क्लोरोबेंजीन के लिए, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ये रिएक्शन शो होती है, जो क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर हम अब रिएक्शन करवाएंगे इसकी क्लोरल के साथ, CCl3CHO.
अगर हमारे पास देखो आपने ये पढ़ रखा होता है एक कंपाउंड CH3CHO जिसे आप इथेनॉल कहते हैं, देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इथेनॉल की, तो ये CH3 और CHO को आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O। देखो 2 बॉन्ड पूरे हो गए, एक आपका ये बच गया, दैट इज द इथेनॉल। अगर तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 कार्बन है इसके अंदर, देखो प्रिंसिपल चेन के अंदर, अब क्या कहेंगे इसे इथ एन, और CHO कौन सा ग्रुप है आपका, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए, अल। 2 कार्बन है तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं, वर्ड रूट कौन हो गया इथ, सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं, बोलो एन। सो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथेनॉल। क्या कहेंगे आप इसे, इथेनॉल। लेकिन अगर हम इथेनॉल के अंदर जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अगर हम CH3 के तीनों H हटा के Cl लगा दें, देखो जैसे अभी हमने लगा दिया Cl, सो नाउ इट इज कॉल्ड एज द ट्राइक्लोरोइथेनॉल। हम इसे क्या कहेंगे, ट्राइक्लोरोइथेनॉल। कॉमन नेम जो है इथेनॉल का वो बोलो क्या है, एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिड एल्डिहाइड। 3 Cl लगा देंगे तो ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, एंड कॉमनली इट इज कॉल्ड एज द क्लोरल। कॉमनली हम इसे क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। अब सिंपल रिएक्शन क्या होगी, स्लाइट एसिडिक मीडियम के अंदर जो हम एल्डिहाइड कीटोन की जो रिएक्शन चलेगी यहाँ पे, बोलो क्या लॉस होगा यहाँ से, देखो वाटर लॉस हो जाएगा यहाँ से इस टाइप से। और पैरा पोजीशन के ऊपर क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि इसका प्लस आर इफेक्ट है Cl का, या तो ऑर्थो पे रिएक्शन चलेगी पैरा पे, क्योंकि 2-2 बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन होती है ये यहाँ पे। देखो इस टाइप से ये वाटर लॉस होगा यहाँ पे स्लाइट एसिडिक मीडियम में जब ये रिएक्शन चलेगी। और रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्शन इज सेट टू अकर व्हेन द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड। जब पुराने बॉन्ड टूट जाएं और नए बॉन्ड बन जाएं तो आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे कहते हैं रिएक्शन। तो किसके बॉन्ड क्लीवेज हुई, जो क्लोरोबेंजीन है इसमें C और H के बीच का देखो बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, यहाँ पे C और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का देखो ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया, तो कार्बन के 2 बॉन्ड टूट गए। तो ये एसिटल जो आपका ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड है, क्लोरल है, उसके अंदर जो कार्बन है वो अपने 2 न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और आपके क्लोरोबेंजीन के अंदर ईच ऑफ द कार्बन एटम विल फॉर्म 1 न्यू बॉन्ड। तो देखो फाइनल ये नए बॉन्ड आपके बन गए यहाँ पे, देखो ये नए बॉन्ड जो हमने दिखा रखे हैं दैट इज अ न्यू बॉन्ड। देखो हमने जो रेड कलर से अब कर दिया इस नए बॉन्ड को, ऐसे ही दूसरा नया बॉन्ड बन जाएगा। देखो जो हमने ये रेड कलर से इस टाइप से शो कर दिया, दैट इज द न्यू फॉर्म्ड बॉन्ड। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, DDT। देखो कैसे ये पैरा पोजीशन के ऊपर देखो 2 Cl लगे हुए हैं, तो देखो ये क्या हो गया, डाइक्लोरो। ये फिनाइल ग्रुप होते हैं तो डाइफिनाइल। ध्यान से देखते चले जाना, डी से बोलो क्या बना यहाँ पे, डाइक्लोरो। इससे क्या बना आपका यहाँ पे, डाइक्लोरो। नेक्स्ट 2 फिनाइल ग्रुप हैं, फिर क्या बना बोलो अगले डी से, डाइफिनाइल। डाइफिनाइल उसके बाद ये 3 Cl हैं तो ट्राइक्लोरो, और ये 2 कार्बन है तो इथेन, तो ये टी आ गया तो ट्राइक्लोरो इथेन। तो इनके फर्स्ट लेटर यूज किए गए हैं डी, डी और टी, सो कॉल्ड द DDT, दैट इज द DDT। तो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन इसका नाम हो जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं DDT। और पूरा नाम लिखे तो हमने पहले ऊपर लिख ही रखा है, 2,2 बिस पैराक्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। देखो ये जो पार्ट है आपका, जिस ये पार्ट इसकी जब हम नंबरिंग करते हैं तो बोलो कैसे करेंगे, ये 1 ये 2 ऐसे। तो अगर हम इस पार्ट को लिखे सबसे पहले, सिर्फ अगर ये फिनाइल ग्रुप वगैरह ना होते तो क्या नाम होता, आप कहते 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये पार्ट देखो इतना हो गया 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, अगर सिर्फ इतना पार्ट होता। अब जो ये 2 है इसके ऊपर क्या लगे, बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप अगर आपके कॉम्प्लेक्स ग्रुप लगे हुए हैं बल्कि ग्रुप, तो उसके लिए 20 वर्ड यूज करते हैं। तो 2 के ऊपर एक ग्रुप है ये क्लोरोबेंजीन, 2 के ऊपर ही दूसरा आपका बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। तो जो क्लोरोबेंजीन है इसकी कौन सी पोजीशन है, ये जहां पे ये अटैचमेंट इनकी हुई है, दैट इज द थ्रू पैरा पोजीशन। क्लोरोबेंजीन अपनी पैरा पोजीशन के थ्रू अटैच है, तो इसको आप क्या कहेंगे, जो इतना पार्ट है आप इसको क्या कहेंगे, ये है पैरा क्लोरोफिनाइल। बोलो ये कौन हो गया,
पैराक्लोरोफिनाइल। पैराक्लोरोफिनाइल कितने हैं? 2 हैं, तो इसलिए 20 लिख दिया। कहाँ पे हैं? 2 पोजीशन के ऊपर ही लगे हुए हैं, 2,2, क्योंकि 2 ग्रुप है तो 2 बार लिखना पड़ा। 2,2 तो 2,2 बिस पैराक्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, इसका नाम हो गया और कॉमनली कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में आप इसे DDT है। DDT एक इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं, एज द इंसेक्टिसाइड्स। और DDT जो है इसको आमतौर पे हम यूज नहीं करते अपनी क्रॉप्स के अंदर, जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं उनको किल करने के लिए, क्योंकि ये आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मीन्स इट रिमेन इन द अर्थ फॉर द लॉन्गर टाइम एंड इट पासेस टू द ह्यूमन बीइंग्स, टू द एनिमल्स, थ्रू द फूड चेन। तो फूड चेन के थ्रू जैसे एनिमल्स खाएंगे उस क्रॉप को तो वो उनकी बॉडी में, फिर उनके मिल्क के थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर वो हमें, हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल रहता, प्लांट्स की बॉडी के लिए हार्मफुल, उसके बाद वो जो एनिमल्स खाएंगे उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल, फिर फाइनली हमारे पास आएगा फूड चेन के थ्रू, तो फिर वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल। तो इसलिए ये बैंड है। जैसे कि अभी हमने बताया, बड़े ध्यान से देख लो, अगर हम सेम रिएक्शन करें बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए वो एक रिएक्शन और हम बता रहे हैं यहाँ पे। अगर हम क्लोरोबेंजीन के अंदर जहाँ पे Cl ग्रुप लगा हुआ था दोनों बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर हम वहां पे OH लगा दें, नेक्स्ट रिएक्शन हम जो हम आपको बताने वाले हैं वहां पे हम OH लगा दें, और ऊपर क्या यूज हुआ था? एसिटल्डिहाइड जो ग्रुप था, जैसे C डबल बॉन्ड हो वैसा ही रहे लेकिन विद स्लाइट चेंज। तो देखो हम फिनोप्थलीन तैयार कर रहे हैं। फिनोप्थलीन जो इंडिकेटर की तरह यूज होता है, वो इससे कोरिलेटेड रिएक्शन इसलिए बता रहे हैं। अगर हम क्लोरोबेंजीन की जगह सिर्फ फिनोल ले लें और ये थैलिक एनहाइड्राइड हम दूसरा रिएजेंट ले लें, सेम रिएक्शन भी लगकर, देखो कार्बोनिल ग्रुप है इसके अंदर भी, एसिडिक मीडियम, द लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड thus result in the formation of the new bonds. The product thus formed is the phenolphthalein. ताकि जब आप ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें एल्कोहल फिनोल वाला, तो उस दौरान आप इजीली इस रिएक्शन को DDT के साथ कंपेयर करके याद कर लें। तो ये दिखने में रिएक्शन DDT जैसी है। क्लोरोबेंजीन की जगह बोलो कौन आ गया आपका? फिनोल, और जो ट्राई क्लोरोइथेनॉल जो क्लोरल था उसकी जगह कौन आ गया आपका? थैलिक एनहाइड्राइड। तो वही कार्बोनिल ग्रुप से O का लॉस, आपके जो आपका फिनोल है उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर से H का लॉस, ओवरऑल वाटर लॉस हुआ, और जो प्रोडक्ट बना उसको कहते हैं फिनोप्थलीन, which act as an indicator. So that is all about the reactions of the aryl halides. Thank you.